بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ڈمی سالی نے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو، میں روزی بول رہی ہوں۔ تم روزی نہیں مرینا ہو، اور میں شیتارا بول رہی ہوں۔ ڈمی کے اندر بیٹھی ہوئی مرینا چونک گئی، پھر سنبھل کر بولی، یہ کیا بکواس ہے، میں مرینا نہیں روزی ہوں۔ شیتارا اس ڈمی کے اندر پہنچ کر بولی، ہاں اب اس کے دماغ میں آ کر معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بیچاری ایک اعلی کار ہے، اور مرینا تم اس کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ مرینا نے کہا، شیتارا یہ سانس روک لیتی ہے، میں اس کے اندر سے چلی جاؤں گی تو یہ تمہیں بھی بھگا دے گی۔ میں نادان نہیں ہوں، تمہارا موجودہ لہجہ اپنا کر اس کے اندر چلی آؤں گی۔ دیکھو تم کام بگاڑ رہی ہو، مجھے اس نقشے کے متعلق بتاؤ، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ نقشہ کہاں ہے؟ مجھے کل جرنل سے دور کر دیا گیا تھا۔ میں معلوم کرنے آئی ہوں کہ پارس اس سلسلے میں کیسی چالیں چل رہا ہے۔ تو پھر معلوم کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہاں تیسری ٹیلیپیتھی جاننے والی باربرا بھی موجود ہوگی۔ جرنل اس کی بیوی یا اس کی سیاہ فام ملازمہ میں سے کسی ایک کے دماغ میں ہوگی، تم اس کا بھی محاسبہ کرو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں۔ ادھر ڈمی سالی نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ مرینا اور شیتارا کی باتیں اپنے دماغ میں سن رہی تھی۔ ایک سیاہ فام ملازمہ نے اسے ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ جنرل کی بیوی وہاں سے جا چکی تھی۔ جنرل نے روزی سے پوچھا، تم ابھی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ تم مرینا نہیں روزی ہو؟ کون تمہیں مرینا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں کون تھی، اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف مرینا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر جے پر گولا سے کہا، میری ڈمی کے اندر شیتارا پہنچ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ بڑی رکاوٹیں پیدا کرے گی۔ شیتارا کو وہاں سے بھگانا ہوگا۔ جیری اور تھرمال کو اپنے پاس بلاؤ، انہیں اپنی ڈمی کے دماغ میں لے جاؤ۔ وہ دونوں وہاں شیتارا کی آواز سنیں گے، پھر وہ دونوں باری باری شیتارا کے دماغ میں جانے کی ناکام کوششیں کرتے رہیں گے، اور وہ انہیں بھگانے کے لیے سانس روکتی رہے گی۔ یوں دونوں کی مسلسل خیال خوانی کے حملوں کو روکنے میں مصروف رہے گی۔ تم ادھر اپنا کام سہولت سے کرنا۔ پر گولا، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ شیتارا اپنی ڈمی کے لہجے میں خیال خوانی کرتی ہے؟ آج تک کسی نے اس کی اصل آواز نہیں سنی۔ جیری اور تھرمال خیال خوانی کی پرواز کر کے ڈمی شیتارا کے پاس پہنچتے رہیں گے۔ جو اصل ہے وہ پھر بھی ڈمی کے پاس ہی رہے گی، ہم اسے وہاں سے نہیں بھگا سکیں گے۔ پر گولا نے کہا، اگر وہ مصیبت بن ہی گئی ہے تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تم وقت ضائع نہ کرو، فوراً نقشے کے متعلق معلوم کرو۔ ڈمی سالی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتی تھی، لیکن شیتارا نے مرینا کا لہجہ اپنایا تھا، اس لیے وہ اسے محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ڈمی کے ذریعے کہا، جنرل، ایک نقشے کی وجہ سے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جنرل نے پوچھا، روزی، تم کیسے جانتی ہو کہ نقشہ کیا ہے اور میں کس طرح خطرے میں پڑ گیا ہوں؟ شیتارا نے کہا، میں روزی کے ذریعے مرینا بول رہی ہوں۔ جھوٹ نہ بولو، مرینا کی آواز اور لہجہ دوسرا ہے، وہ میرے دماغ میں آ کر بولتی ہے۔ تم مرینا ہو تو میرے اندر آؤ۔ اسی وقت مرینا بھی ڈمی سالی کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے کہا، پارس کی ساتھی باربرا نے تمہیں مجھ سے چھین کر اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لہجہ اپنا کر تمہارے پاس آتی ہے، میں نہیں جانتی ہوں، اس لیے تم سے دور ہو گئی ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے اندر آؤ گی تو تمہیں اپنی دوست مرینا تسلیم کروں گا۔ شیتارا نے کہا، مرینا، ہمیں باربرا اس کے اندر نہیں جانے دے گی، اور ہمیں اندر پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ پارس نے نقشے کے سلسلے میں کیا گھپلا کیا ہے۔ پھر تو اسے زخمی کرنا ہوگا یا اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا ہوگا۔ اس دوران باربرا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ وہ جنرل کے دماغ میں نہیں جا رہی تھی، اگر جاتی تو شیتارا اور مرینا کو بھی وہاں جگہ مل جاتی، اس لیے وہ کبھی جنرل کی بیوی اور کبھی سیاہ فام ملازمہ کے دماغ میں رہ رہی تھی۔ جب اس نے جنرل کی سالی کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ مرینا ہے یا اس کی کوئی اعلی کار ہے۔ پھر شیتارا اور مرینا کی فون کال کے وقت اس ڈمی کے اندر وہ دونوں رہی تھیں، تب باربرا کو بھی اس کے اندر پہنچنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ وہاں خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ آخر مرینا نے اس ڈمی سالی سے کہا، تمہارے بالوں میں جو ہیئر پن لگی ہوئی ہے اسے سر سے نکال کر جنرل کے جسم کے کسی بھی حصے میں چبو دو۔ ڈمی سالی نے حکم کی تعمیل کی، اپنی جگہ سے اٹھی اور جنرل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے لگاوٹ کی باتیں کرتے ہوئے اپنے بالوں سے پن نکال کر اسے چبو دی۔ جنرل کے منہ سے ہلکی سی سسکی کی آواز نکلی۔ سوئی میں لگی ہوئی دوا زود اثر تھی، اس دوا نے فوراً ہی اثر دکھایا۔ وہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا۔ شیتارا اور مرینا یہ دیکھتے ہی اس کے اندر پہنچیں۔ وہ تیزی سے اس کے چور خیالات پڑھنے لگیں۔ اس کے خیالات بہت کچھ بتا رہے تھے۔
नेवी हेड क्वार्टर से वॉशिंगटन के कौमी बैंक से अपने घर तक पहुंचने की तमाम तफसीलात मालूम हो रही थीं, लेकिन उसके ख्यालात ये नहीं बता सकते थे कि उस नक्शे की माइक्रोफिल्म कैसे तैयार की गई थी और वो किस तरह रिवॉल्वर के चैम्बर में छुपाई गई थी। चूंकि ऐसे वक्त बारबरा ने जनरल के दिमाग को गायब कर रखा था और उस पर मुसल्लत रहकर माइक्रोफिल्म तैयार की थी, इसलिए जनरल को उसका कोई इल्म ना था और इसलिए उसका दिमाग शितारा और मरीना को बात बताने से कासिर था। शितारा और मरीना हैरान थी कि वो नक्शा बड़ी सहूलत के साथ कौमी बैंक के आहनी सेफ में पहुंचा दिया गया है और पारस उसे हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात यकीन करने वाली नहीं थी। मरीना ने जनरल के कमज़ोर दिमाग से पूछा, क्या बारबरा ने तुम्हें अपना ताबेदार बनाकर तुमसे नक्शे का मुतालबा नहीं किया था? कौन बारबरा? मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ मरीना आती है और उसने मेरे पास आने के लिए अपना लहजा बदल लिया है। शितारा ने कहा, अच्छी तरह सोच कर बताओ, तैयारे में सफ़र करने के दौरान क्या तुम थोड़ी देर के लिए गाफिल हुए थे? गाफिल होने से तुम्हारी मुराद सो जाना है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। एक फ़ौजी अफसर बेवक्त नहीं सोता। तुम कैसे सो गए थे? उस नींद के दौरान ज़रूर कुछ हुआ होगा। ऐसे वक्त जनरल की ज़ुबान ने बारबरा की मर्ज़ी के मुताबिक कहा, हाँ, नींद के दौरान मैंने ख्वाब देखा था। शितारा ने कहा, शायद वो ख्वाब ना हो, तुम्हारा बेख्तियारी का अमल हो। अच्छी तरह याद करो और बताओ कि वो ख्वाब जैसा अमल क्या था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैंने ब्रीफ केस को खोला था। मरीना ने पूछा, तुम्हें लॉक का खुफिया नंबर मालूम नहीं था, तुमने उसे कैसे खोला? शितारा ने सख्त लहजे में कहा, मरीना तुम खामोश रहो, इसे टोकने से ये असल बात भूल सकता है। जनरल ने बारबरा की मर्जी के मुताबिक कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ब्रीफ केस से नक्शा निकालकर उसे खोल रहा हूँ। फिर मैंने अपने रिवॉल्वर का चैम्बर बाहर निकाला है। उस चैम्बर में गोलियां नहीं हैं, उसके अंदर एक नन्हा सा माइक्रो कैमरा है और मैं उस कैमरे से नक्शे की तस्वीर उतार रहा हूँ। शितारा और मरीना अपनी अपनी जगह हैरत से उछल पड़ी। दाइमा ने शितारा से पूछा, बेटी क्या हुआ? शितारा ने कहा, वो फरहाद का नहीं शैतान का बच्चा है, मैं अभी आती हूँ। मरीना ने कहा, वो शैतान का बच्चा नहीं शैतान का बाप है, मैं भी अभी आती हूँ। दोनों की समझ में आ गया था कि पारस ने कैसा गजब का कमाल दिखाया है। दोनों ही डमी साली के दिमाग में आई, फिर उस बेचारी को दौड़ाती हुई जनरल के बेडरूम में ले गईं। डमी ने अलमारी के पास पहुंचकर उसके पट को खोला। अंदर दूसरे कपड़ों के साथ फौजी वर्दी हैंगर पर लटकी हुई थी। एक जगह होल्स्टर में रिवॉल्वर नजर आ रहा था। उसने लपक कर रिवॉल्वर को होल्स्टर से निकाला, फिर रिवॉल्वर वाला चैम्बर बाहर खींचा। उसमें बुलेट्स नहीं थे, उनमें माइक्रो कैमरा नहीं था। गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। वो थोड़ी देर तक अलमारी के दराजों और मुख्तलिफ हिस्सों में माइक्रो कैमरा तलाश करती रहीं। फिर दोनों उसके दिमाग से निकलकर जनरल के पास आईं। झुंझलाकर पूछने लगीं, कहाँ है वो माइक्रो फिल्म? शितारा ने कहा, रिवॉल्वर का चैम्बर खाली है। अच्छी तरह याद करो, तुमने वो कैमरा रिवॉल्वर के चैम्बर से निकालकर कहाँ छुपाया है? मैंने ख्वाब में रिवॉल्वर को हाथ लगाया था, फिर उसके चैम्बर में कैमरा वापस रखने के बाद उस रिवॉल्वर को छूकर भी नहीं देखा था। उसे होल्स्टर समेत अलमारी में रख दिया था। इसका मतलब है पारस ने किसी आलायकार के जरिए उसे चोरी कराया है। जनरल ने कहा, यहाँ अभी तक कोई बाहर का फर्द नहीं आया है, चोरी कैसे हो गई? घर के किसी फर्द को आलायकार बनाकर यह मकसद पूरा किया गया है। वो दोनों जनरल की बीवी के अंदर आईं। उसके चोर ख्यालात पड़े। पता चला वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती है। मरीना ने कहा, ओ गॉड, हम उस स्याह मुलाजमा को भूल रहे हैं। वो दोनों फिर डमी साली के दिमाग में आईं। उसे हर कमरे में घुमाने फिराने और स्याह मुलाजमा को तलाश कराने लगीं। आखिर वो एक कमरे में नजर आ गई। कुछ देर पहले जब वो डमी साली को मशरूब से भरा हुआ ग्लास देने आई थी तो नॉर्मल थी, अब नशे में झूम रही थी। डमी साली को देखकर बोली, वेल, मैं समझ गई, तुम्हारे अंदर जो दो चुड़ैलें हैं वो माइक्रोफिल्म के लिए भागी भागी फिर रही हैं। फिर वो हंसती हुई बोली, बड़ा अजीब तमाशा हो गया। एक मेरी जैसी काली कलोटी यहाँ आई थी, वो मेरी हम शक्ल थी। मैं मशरूब से भरा हुआ ग्लास ले जाना चाहती थी। उसने मेरे बाजू पर अपने एक नाखून की हल्की सी खराश डाली। हाय, मैं क्या बयान करूं, ऐसा मज़े का नशा होने लगा कि मैं अब तक मस्त हो रही हूं। सफूरा रा। शितारा और मरीना दोनों चीख पड़ी, सफूरा सफूरा। दोनों ने फिर उस डमी साली को बाहर की तरफ दौड़ाया। उसे सिक्योरिटी ऑफिसर के पास ले गईं। उसके जरिए पूछा, क्या यहाँ से कोई स्याह फाम लड़की बाहर गई है? अफसर ने कहा,
हाँ, इस कोठी की स्याफा मुलाजमा मैरी गई है। तुमने उसे क्यों जाने दिया? वो यहाँ की मुलाजमा है, आती जाती रहती है, उसे कभी रोका या टोका नहीं गया। आज भी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया था। वो दोनों फिर उसे दौड़ाती हुई गेट पर लाईं। वहाँ खड़े हुए मुसल्ला गार्ड्स में से एक गार्ड से पूछा, वो स्याफाम मैरी किधर गई है? उसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर गई है। क्या किसी गाड़ी में गई है? जी हाँ, ब्लैक होंडा एकॉर्ड में। इसका मतलब ये था कि वो बहुत दूर निकल गई है। पारस से ये तवक्को नहीं थी कि वो उसे एक ही ब्लैक होंडा एकॉर्ड में बिठाए रखेगा। आगे जाकर सफूरा ने गाड़ी तब्दील की होगी। मरीना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर एक लंबी सांस यूं छोड़ी जैसे दम निकल रहा हो। जे परगोला ने पूछा, क्या हुआ? कभी आ रही हो, कभी जा रही हो, आखिर कुछ बताओ तो सही। वो इस बार लंबी सांस लेकर बोली, वो कमीना नक्शा ले गया। यानी पारस को कह रही हो? वो इतना बड़ा नक्शा कैसे छुपा कर ले जाएगा? वो नक्शे की माइक्रोफिल्म ले गया है। वो जे परगोला को पारस की हिकमत अमली के मुतालिक बताने लगी। उधर शितारा दिमागी तौर पर हाजिर होकर हौले हौले हंसने लगी। अपने सर को थाम कर सोफे की पुश्त से टिक गई। दाई माँ ने कहा, ए बेटी, ये तो खसियानी हंसी लग रही है। वो हंस हंस कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त अपना सर पीट कर मातम करना चाहिए या पारस की बेमिसाल जहानत पर खुश होना चाहिए। बस मैं हंस रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हंसना अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है? वो हंसते हंसते यकलख्त खामोश हो गई। दाई माँ को खाली खाली नज़रों से तकने लगी। बुढ़िया ने पूछा, क्या देख रही हो? वो जैसे दूर कहीं पहुँच कर बोली, मैं चाहती हूँ वो कांटा मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। एक दिन उसे मरना है, आज ही मर जाए, फिर मेरे धर्म को कभी ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं उसे अपना गुलाम बनाने या मार डालने की तमन्ना करती हूँ, लेकिन उसकी दलेरी और जहानत पर बेख्तियार खुश होने लगती हूँ। खुश तो वो औरत होती है जिसका मर्द कमालात दिखाता है और दुनिया में नाम पैदा करता है, और वो फ़ख्र से भर जाती है। ये फ़ख्र मेरे अंदर क्यों भर जाता है? बेटी, तेरे सवाल का क्या जवाब दूँ? हाँ, ऐसा होता है कि जब अपने ज़बरदस्त के सामने औरत का बस नहीं चलता तो वो अनजाने में उस ज़बरदस्त के आगे झुकने लगती है, मगर दावा भी करती है कि टूट जाएगी मगर नहीं झुकेगी। तेरे अंदर एक जंग जारी रहती है, भगवान जाने तेरा क्या बनेगा। शितारा ने सर झुका लिया। ये अकीदत का और इबादत का तकाजा है कि सजदे में जाने से पहले सर झुकाना आ जाए। 7 भाइयों की वो खुफिया तंजीम एडम ब्रदर्स कहलाती थी। उन 7 भाइयों की एक बहन अल्पा थी। इस वक्त वो एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका सबसे बड़ा भाई ब्रेन एडम उसके पास बैठा हुआ कह रहा था, तुमने बाबा साहब के इदारे में बड़े कारनामे अंजाम दिए। टेलीपैथी जानने वाले टेरी हार्ट को ट्रैप करके यहाँ पहुँचा दिया। जोजो को भी यहाँ ले आईं, मगर एक बहुत बड़ी गलती के बायस वो हाथ आकर निकल गई। वो बोली, बड़े भाई, मुझे इस गलती का हमेशा अफसोस रहेगा और मैं शर्मिंदा रहूंगी। नहीं सिस्टर, इस गलती को भूल जाओ। मैं उसे भुलाने के लिए ही अभी तुम पर अमल कर रहा हूँ। सोनिया आसानी ने जोजो के जरिए तुम्हारी असल आवाज़ और लहजे को सुन लिया है। आइंदा वो तुम्हारा लहजा इख्तियार करके तुम्हारे किसी मामूल के अंदर पहुँच सकती है और कोड वर्ड्स मालूम करके हम तमाम भाइयों तक पहुंचकर हमारी खुफिया तंजीम के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकती है। सोनिया सानी खतरा बन गई थी, लिहाजा अल्पा तनवीमी अमल के लिए राजी हो गई। बड़े भाई ब्रेन एडम ने उस पर अमल करना शुरू किया। मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसे फिर से अपनी मामूला बना लिया। असल बात यह थी कि अल्पा किसी भी रिश्ते से उसकी बहन नहीं थी। चूंकि वो 7 भाई तजर्रुद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, किसी औरत को माशूका की हैसियत से करीब नहीं आने देते थे, इसलिए अल्पा को बहन बना लिया था। इसकी भी वजाहत हो जाएगी कि 7 भाइयों की हकीकत क्या है। हकीकत ये कि वो भी किसी रिश्ते से एक दूसरे के भाई नहीं थे और ना ही वो मुजर्रद थे। इस खुफिया तंजीम का एक ही बुनियादी रुकन था जिसका जिक्र आइंदा होगा। फिल वक्त ब्रेन एडम सबसे अहम था। उसने रफ्ता रफ्ता बाकमाल और बासलाहियत अफराद को फांसा था। इससे पहले एक बहुत बड़े सियासतदान को फांसा। वो आलमी सियासत की शतरंज का ज़बरदस्त खिलाड़ी था। उस पर तनवीमी अमल करने के बाद उसने सियासतदान का माजी भुला दिया और उसे छोटा भाई बनाकर उसका नाम वाइट एडम रखा। इस तरह उसने ब्लैक एडम को तीसरा, रॉकेट एडम को चौथा, जवाद एडम को 5वां और जॉन एडम को 6ठा भाई बना लिया। हकीकतन वो 2 भाई थे। वो 7 भाई कहलाते थे, लेकिन तनवीमी अमल के मुताबिक 6 भाई थे। ये कोई नहीं जानता था कि ब्रेन एडम 1 नहीं 2 हैं। दोनों जुड़वां भाई थे, दोनों जुड़े हुए दुनिया में आए थे।
پیدائش کے بعد آپریشن کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک اسرائیل میں 6 معمول بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا، دوسرا برین ایڈم جو اس کا ہم شکل اور ہم مزاج تھا، اس کی رہائش نیو یارک میں تھی۔ یہ یاد رہے کہ اس تنظیم کے خاص پتھر کا ذکر آئندہ ہوگا۔ دونوں برین ایڈم کے درمیان برابر رابطہ رہتا تھا۔ ان کے پاس 2 ہیلی کاپٹرز اور 2 خصوصی طیارے تھے جن کے ذریعے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کی جگہ آ کر ایک دوسرے کے فرائض ادا کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی پیدائشی عادت تھی کہ ایک کے پیٹ میں تکلیف ہوتی تو دوسرا بھی اس تکلیف سے بے چین ہو جاتا، ایک کو کوئی چوٹ پہنچتی تھی تو دوسرا بھی اس چوٹ کی شدت سے تڑپتا تھا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی خوشیوں کو بھی دور رہ کر اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے تھے۔ ان فطری عادات سے انہوں نے ایک فائدہ اٹھایا، جب کوئی مجبوری آڑے آتی، وہ فون یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی وجہ سے رابطہ نہ کر سکتے تو قدرتی ذرائع سے ایک دوسرے کے پاس پیغام بھیجتے تھے۔ وہ ایسے کہ رابطہ نہ ہونے پر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تل ابیب میں ایک برین ایڈم ہنستا تھا تو نیو یارک میں دوسرے برین ایڈم کو بھی بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی۔ اس طرح ایک دوسرے کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اسرائیلی بھائی ہنسی خوشی مزے میں ہے۔ اگر امریکی بھائی روتا تو اسرائیلی کو بھی بے اختیار رونا آ جاتا اور معلوم ہو جاتا کہ دوسرا بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اگر ایک چاہتا کہ دوسرے کو اپنے پاس بلائے تو وہ اپنے دائیں پیر میں کوئی نکیلی چیز چبوتا تھا، دوسرا دائیں پیر میں چبھن محسوس کر کے سمجھ لیتا تھا کہ بھائی کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر بائیں پاؤں میں چبھن محسوس ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا بھائی سے دور رہو، خطرہ ہے، اور دور ہی دور سے بھائی کی سلامتی کے لیے کوششیں کرتے رہو۔ اس بار نیو یارک والے برین ایڈم نے دائیں پیر میں چبھن محسوس کی تھی اور سمجھ گیا تھا کہ ایسی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے دوسرا بھائی فون اور ٹرانسمیٹر پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بلا رہا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کر کے تل ابیب آ گیا تاکہ کوئی انہیں ہم شکل پا کر نہ چونکے۔ نیو یارک والے نے کہا، برین، اگر تم نہ بلاتے تب بھی میں آ جاتا، کیونکہ ہم ہر ماہ باقی 5 ایڈم بردرز اور سسٹر الپا پر تنویمی عمل کرتے ہیں۔ ایڈم، انہیں ہمیشہ معمول اور تابعدار بنانے کے لیے ہر ماہ ان پر تنویمی عمل کرنا لازمی ہے، لیکن میں نے تمہیں 2 دن پہلے اس لیے بلایا ہے کہ ایک زبردست نسخہ میرے ہاتھ آیا ہے۔ وہ دوسرے بھائی کو غیر معمولی قوت سماعت و بصارت اور حیرت انگیز جسمانی و دماغی قوتوں سے تعلق رکھنے والے فارمولوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے سننے کے بعد کہا، مگر یہ فارمولے ادھورے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک ماہر طبیب اور علم الابدان کے ایک ماہر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا کر ایک خفیہ لیبارٹری میں پہنچا دیا ہے۔ دونوں کا یہ بیان ہے کہ ان فارمولوں میں قوت سماعت و بصارت کے نسخے مکمل ہیں، صرف ان ادویات کو آزمانا ہوگا جن کے نام اس نسخے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان ادویات کو کس پر آزما رہے ہیں؟ میں نے کسی انسان پر آزمانے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ یہ تجربہ کامیاب رہے گا تو ایک غیر معمولی شخص کا اضافہ ہوگا، اس لیے وہ ماہرین ایک بندریا پر وہ دوائیں آزما رہے ہیں۔ نیو یارک والے بھائی نے کہا، اگر تجربہ کامیاب رہا تو ہم دونوں بھائیوں کو فون اور ٹرانسمیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نیو یارک سے بولوں گا، تم سنو گے، تم تل ابیب سے بولو گے، میں نیو یارک میں سنوں گا۔ واہ، مزہ آ جائے گا۔ میں تو ابھی سے یہ قوتیں حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ ماہرین بندریا کو وہ دوائیں کھلا رہے ہیں اور انجیکشن لگا رہے ہیں۔ ہفتے 2 ہفتے میں کچھ نتائج ظاہر ہونے کی امید ہے۔ پھر تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، ان ماہرین کے ساتھ رہ کر جائزہ لوں گا، انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کروں گا اور ایک ایک دوا کے عمل اور رد عمل کو سمجھتا رہوں گا۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ جب تم اچھی طرح سب کچھ سمجھ لو گے اور تجربہ کامیاب ہو جائے گا تو ان دونوں ماہرین کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا تاکہ ان فارمولوں کی کامیابی کا گواہ کوئی نہ رہے۔ بے شک ہم دوسرے ممالک اور دوسری تنظیموں سے یہی کہیں گے کہ پارس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ فارمولے جعلی ہیں۔ وہ دونوں مصروف ہو گئے، ایک ان فارمولوں کے معاملے میں مصروف رہا، دوسرا باقی 5 ایڈم بردرز اور الپا پر باری باری تنویمی عمل کرتا رہا۔ الپا کی آواز اور لہجہ بدل دیا گیا، دوسرے ٹیلیپیتھی جاننے والے ٹیری ہارٹ کا برین واش کیا گیا، اسے کٹر قوم پرست یہودی بنا دیا گیا۔ جب وہ تنویمی نیند سے بیدار ہوا تو پچھلی زندگی بھول چکا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو ایک وسیع و عریض خوابگاہ میں پایا۔ وہاں الپا اور 6 ایڈم بردرز موجود تھے۔ برین ایڈم نے کہا، ٹیری، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ ٹیری ایک ایک کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلاننگ کے مطابق الپا اس کے دماغ کے اندر موجود تھی اور اس کی سوچ میں کہہ رہی تھی، ہاں، یہ کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے ہیں، میں کون ہوں اور کہاں ہوں؟ الپا نے زبان سے کہا، تم ایک حادثے میں اپنی یادداشت سے محروم ہو گئے ہو۔ پچھلے 1 ماہ میں 2 بار تمہارے برین کا آپریشن ہو چکا ہے۔
डॉक्टर्स मायूस हो गए हैं, कहते हैं शायद रफ्ता रफ्ता तुम अपनी इस बहन और भाइयों को पहचान सकोगे। क्या तुम मेरी बहन और ये सब मेरे भाई हैं? हाँ, तुम ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो और बारी बारी हम सब के दिमागों में आओ, तो हमारे ख्यालात पढ़कर तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। वो बुड़बुड़ाने लगा, ख्याल ख्वानी? क्या मैं टेलीपैथी जानता हूँ? तुम खुद गौर करो, अपने आप को भूलने के बावजूद ये जानते हो कि टेलीपैथी कोई इल्म है। हाँ, मगर ख्याल ख्वानी की परवाज़ कैसे की जाती है? कोशिश करो, मेरी आवाज़ और लहजे पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करो, अभी मालूम हो जाएगा। टेरी हार्ट ने आंखें बंद करके हिदायत पर अमल किया। अल्पा ने उसके अंदर आकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ में उससे ताउन किया तो वो अल्पा के अंदर आ गया। वो बोली, टेरी, मैं तुम्हें अपने अंदर महसूस कर रही हूँ, तुम अपनी ज़ुबान हिलाए बगैर सोच के ज़रिए बातें करो। उसने आंखें खोल कर सोच के ज़रिए हैरानी से कहा, हाँ, मैं खुद को तुम्हारे अंदर महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारी सोच की लहरों को पढ़ सकता हूँ। वो अल्पा के ख्यालात पढ़ने लगा। एक एक एडम ब्रदर ने उसे अपनी अपनी आवाज़ सुनाई। वो उनके अंदर आकर भी बोलने लगा, खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं बहुत कुछ भूलने के बाद भी ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। ब्रेन एडम ने उसकी ख्याल ख्वानी पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये बात टेरी नहीं जानता था कि एक मामूल और ताबेदार की हैसियत से वो हमेशा ब्रेन एडम का पाबंद और मोहताज रहने वाला था। वहाँ एक बहन और 6 भाइयों ने उसे अपना 7वां भाई होने का यकीन दिलाया और ये बताया कि उनके माँ बाप मर चुके हैं, दुनिया में और उनका कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही वो सब किसी से दोस्ती करते हैं और ना किसी औरत से किसी तरह का ताल्लुक उस्तवार करते हैं, क्योंकि वो सब अपने मुल्क और कौम के खुफिया खिदमतगार हैं, बल्कि वो बहन और 7 भाई उस मुल्क के खुफिया हुक्मरान हैं। इसराइली हुकाम या फ़ौजी अफसरान से कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे मुल्क को और यहूदी अवाम को नुकसान पहुंचता हो तो वह ऐसे किसी खतावार हाकिम या अफसर को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उन्होंने वीडियो कैसेट के ज़रिए अपने मुल्क के तमाम हुक्काम और फ़ौजी अफसरान की तस्वीर दिखाईं। ब्रेन एडम ने कहा, ब्रदर टेरी, तुम फुर्सत के औकात में इन हुक्काम और अफसरान की तस्वीर देखते रहोगे, इनकी आवाज़ें सुनते रहोगे, फिर चुपके से उनके दिमागों में पहुंचकर उनके चोर ख्यालात पढ़ते रहोगे, ताकि इन सब की कमज़ोरियों से और जज्बा हुब्बुल वतनी से आगाह होते रहो। फिर वीडियो कैसेट बदल दिया गया। ब्रेन एडम ने कहा, तुमने पहले कैसेट में अपने यहूदी हुक्मरानों और अफसरों को देखा था। अपनों में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, लेकिन गैरों में कोई दोस्त नहीं होता। गैरों से बज़ाहिर दोस्ती की जाती है, लेकिन दरपर्दा दुश्मनी बरकरार रखी जाती है। हमारे सबसे पहले और अज़ली दुश्मन मुसलमान हैं। उनमें से एक भाई ने कहा, ब्रदर टेरी एडम, मेरा नाम जवाद एडम है और मैं नाम का मुसलमान हूँ और काम का यहूदी हूँ। मैं इस्लामी ममालिक की सियासी और इक़्तिसादी पॉलिसियों को कमज़ोर बनाता हूँ, मुसलमानों के दरमियान नफ़रत और खाना जंगी के असबाब पैदा करता हूँ। लेकिन टेलीपैथी की दुनिया में जिसका नाम सर फहरिस्त है वो है फ़रहाद अली तैमूर। तुम्हें फ़रहाद और उसकी फ़ैमिली के अफराद की तस्वीर दिखाई जा रही हैं, इन्हें जहन नशीन करते रहो। वो स्क्रीन पर मुझे चलते फिरते और बातें करते हुए देखने लगा। मेरे बाद सोनिया, आमना फ़रहाद, पूमी, पारस, अली तैमूर, लैला, सलमान, सोनिया सानी, जोजो और सुल्ताना वगैरह की तस्वीर स्क्रीन पर आती रहीं। उसे बताया गया कि बारबरा नामी एक और टेलीपैथी जानने वाली का इजाफा इस फैमिली में हुआ है, जिसकी तस्वीर अभी तक हासिल नहीं हो सकी हैं। फिर उसे शीतारा के मुतल्लिक बताया गया कि वो एक पुरस्कार टेलीपैथी जानने वाली है, जिसकी असली सूरत किसी ने नहीं देखी है और ना ही किसी ने उसकी असली आवाज़ और लहजे को सुना है। टेरी एडम को मरीना, जेरी और बीजी थर्मॉल वगैरह की भी तस्वीर दिखाई गईं। फिर वो तमाम भाई मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करने लगे। एक भाई सीक्रेट एडम ने कहा, ब्रदर टेरी एडम, मैं अपने मुल्क इसराइल के दाखिली मामलात पर नज़र रखता हूँ। यहाँ फ़लस्तीनी मुसलमानों को सर उठाने का मौका नहीं देता। कल रात 2 नामालूम अफराद ने एक आला फ़ौजी अफसर को अगवा किया था और एक ऐसे अड्डे में ले गए थे जहाँ पहले से एक सरकारी तबीब और एक इल्मुल अब्दान के माहिर को कैदी बना कर रखा गया था। टेरी ने पूछा, क्या उन अगवा करने वालों को गिरफ्तार करना है? नहीं, वो रूपोश हैं। उन्होंने फ़ौजी ऑफिसर को रिहा कर दिया। ऑफिसर ने बताया है कि उस पर तशद्दुद किया गया था और बार बार गैर मामूली फार्मूलों के मुतल्लिक पूछा जा रहा था। ब्रेन एडम ने कहा, इस एक वाक़ये से साबित होता है कि तमाम बड़े ममालिक और खुफिया तंजीमें उन फार्मूलों को हासिल करने के लिए यहाँ अपने खुफिया अड्डे कायम कर रही हैं। अभी सिर्फ 2 पीछा करने वाले हमारे इल्म में आए हैं, पता नहीं यहाँ और कितने होंगे। जब तक उनका सुराग ना मिले अल्पा और टेरी को रिहाइशगाह से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
क्योंकि दुश्मन पहले हमारे टेलीपैथी जानने वालों को हमसे छीनने की कोशिश करेंगे। उसी लम्हे ब्लैक एडम ने पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली और अल्पा और टेरी को देखा। इसके बाद पूछा, टेरी, क्या अभी तुम मेरे अंदर आना चाहते थे? उसने कहा, नहीं ब्रदर, मैं स्क्रीन पर दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों की तस्वीर देख रहा हूँ। अल्पा ने पूछा, क्या अभी तुमने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था? हाँ, और महसूस करते ही सांस रोक ली थी। अब कोई आए तो सांस ना रोकना, मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारे दिमाग पर हावी रहूंगी, आने वाले को तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने नहीं दूंगी। ब्रेन एडम ने कहा, वो आने वाली हस्ती कौन थी या कौन था, कुछ अंदाज़ा करो। ऐसी हरकत से साबित हो रहा है कि टेलीपैथी जानने वाले इन फॉर्मूलों के पीछे पड़ गए हैं। अल्पा ने कहा, सोमालिया के जंगल में कई टेलीपैथी जानने वालों ने ब्रदर ब्लैक एडम की आवाज़ें सुनी हैं। मरीना, शीतारा, बारबरा और विकी सोल, इन चारों को ब्रदर का लहजा ज़रूर मालूम हो चुका है। ब्रेन एडम ने कहा, बारबरा या फरहाद की फैमिली का कोई फ़र्द इधर नहीं आएगा क्योंकि उन्हें फॉर्मूलों में दिलचस्पी नहीं है। उसी वक्त ब्लैक एडम ने अल्पा को इशारा करके आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि कोई अनजानी कुव्वत उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर रही है। ऐसे ही वक्त अल्पा की आवाज़ आई। वो पूछ रही थी, कौन हो तुम? ये आंखें नहीं खोलेगा और ना ही तुम्हें ये मालूम हो सकेगा कि ये अभी कहाँ है और किन लोगों में है, और ना तुम्हें इसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिलेगा। जवाब दो, तुम कौन हो? उसने चंद लम्हों तक इंतज़ार किया, फिर ब्लैक एडम से बोली, सांस रोक लो, आइंदा इसे आने ना देना। उसी वक्त मरीना की आवाज़ आई, सांस ना रोकना, मैं मरीना हूँ। क्यों आई हो? फ़ौरन मकसद बताओ और जाओ। मैं ये कहने आई हूँ कि पारस ने इन फार्मूलों की अद्वियात में ज़रूर कोई तब्दीली की होगी। अल्पा ने कहा, इतनी अकल हमें भी है, आगे बोलो। बेशक अक्लमंद हो, तुम लोगों ने इल्मुल अब्दान के माहिरीन 2 डॉक्टरों की खिदमात हासिल की होंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे माहिरीन अगर नाकाम रहें तो ऐसे वक्त मैं काम आऊँगी। अल्पा और मरीना के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी उसे ब्लैक एडम ज़ुबान से अदा करता जा रहा था। वहाँ बैठे हुए तमाम ब्रदर्स सुन रहे थे। अल्पा ने पूछा, जब माहिरीन नाकाम हो जाएंगे तो भला तुम क्या कर सकोगी? मरीना ने जवाब दिया, मैं उन दवाओं के नाम जानती हूँ। झूठ ना बोलो, तुम कैसे जानती हो? याद करो अल्पा, पैपेगमाइस कबीले की बस्ती में मैं, पारस और बारबरा के साथ थी। हाँ, मैंने फ्लावर के ज़रिए तुम्हें उनके दरमियान देखा था। वहाँ उस बुत के अंदर पारस ने वो फॉर्मूले निकाले थे और पाशा से उनकी दूसरी नकल लिखवाई थी। क्या तुम्हारे सामने लिखवाई थी? नहीं, वो अपने राज में किसी को शरीक नहीं करता है, सिर्फ बारबरा उसकी राजदार थी। उसने पारस की हिदायत के मुताबिक पाशा के दिमाग में रहकर 6 जगह दवाओं के नाम तब्दील किए। चूंकि बारबरा पाशा के अंदर थी इसलिए उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने उन 6 दवाओं के असल नाम ज़हन नशीन कर लिए। अगर उस जंगल में कहीं से कागज़ कलम मिल जाता तो मैं वो तमाम फार्मूले नोट कर लेती। वैसे अब भी घाटे में नहीं हूँ। अल्पा ने कहा, अगर तुम दुरुस्त कह रही हो तो वाकई उन 6 दवाओं के नामों के बगैर फार्मूले अधूरे रहेंगे। मरीना ने पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? 10 मिनट के बाद आओ, तुम्हें जवाब मिलेगा। ब्लैक एडम ने सांस रोक ली। मरीना और अल्पा दोनों दिमाग से बाहर निकल आईं। अल्पा ने ब्रेन एडम से पूछा, बड़े भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रेन एडम ने कहा, शायद वो दुरुस्त कह रही है, पारस ने ज़रूर तब्दीलियां की होंगी, उन नुस्खों को आजमाया जा रहा है। अगर वो दवाएं मौसर ना हुई तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जो 6 दवाएं तब्दील की गई हैं उनके असल नाम मरीना की यादाश्त में महफूज हैं। एक ब्रदर ने कहा, जब तक हमारी लेबॉर्ट्री का नतीजा सामने ना आए मरीना को टालना चाहिए। दूसरे ब्रदर ने पूछा, फ़र्ज़ करो कि 6 दवाओं के नाम वाकई तब्दील किए गए हों तो फिर मामलात कैसे तय होंगे? तीसरे ब्रदर ने कहा, इस पहलू पर गौर करने के लिए काफ़ी वक्त है, हमारा ज़हीन तरीन बड़ा भाई ब्रेन एडम उसे काबू कर लेगा। ब्रेन एडम बोला, जहानत का तकाजा है कि अभी से मरीना को दोस्त बनाने की कोशिशें की जाएं, ये मालूमात हासिल की जाएं कि वो कहाँ है, तन्हा है या किसी के लिए काम कर रही है। 10 मिनट पूरे हो गए। ब्लैक एडम ने अल्पा को दिमाग में आने के लिए कहा। अल्पा आ गई। फिर ब्लैक एडम उन दोनों की गुफ्तगू अपनी ज़ुबान से नशर करने लगा। अल्पा ने कहा, मरीना, हम पारस के मुकाबले में तुम्हें तरजीह देते हैं और तुम पर एतमाद करते हैं कि वो पक्का फ्रॉड है। उसने फार्मूलों में ज़रूर तब्दीलियां की होंगी। ये बताओ, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? मरीना ने कहा, क्यों बच्चों जैसी बातें करती हो? हर टेलीपैथी जानने वाला दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले को अपना मुतीओ फरमाबरदार बनाना चाहता है। हर बड़ा मुल्क या किसी तंजीम का सरबराह
टेलीपैथी जानने वालों की फौज बनाने की फिक्र में मुब्तला रहता है। दुरुस्त कहती हो, इसके बावजूद हम अच्छी सहेलियां बन सकती हैं। अल्पा, मैं इसराइली नई खुफिया तंजीम के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि तुम उस तंजीम के सरबराह की पाबंदियों में रहती हो और मैं आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ने वाली चिड़िया हूँ। पिंजरे की चिड़िया मेरी सहेली कैसे बनेगी? क्या तुम सुपरमास्टर के लिए काम नहीं कर रही हो? मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारी तंजीम के लिए भी काम कर सकती हूँ, लेकिन सहेली के नाम पर अपने पर उतरने का मौका नहीं दूंगी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।